Shri Pankaj Kumar Gupta. Shri Pankaj is an electrical engineer from MNR Allahabad. He started his career as a lecturer in 1980 in an engineering college in Bhutan. He remained in the teaching profession for 5 years, after which he shifted to the industry. After gaining a rich experience in both teaching and industry, he set up his own industry for manufacturing power transformers by the name A Powertech Electricals Private Limited. This industry is operational in Meerut now for the past 25 years. He has also held several significant positions in Indian Industries Association and is currently the national president of IIA. A warm welcome to you, Pankaj ji. So, thank you. Over to you, starting the session, please. Thank you very much, and Priyanka. Good morning and welcome everyone who are watching this program. You see, friends, this is the very grave situation. Nowadays, everybody is affected by this coronavirus. So, in the beginning, I'll extend my sincere thanks to QCI for giving me this opportunity to share my views with august viewers on this MSME sector. Secondly, this is time when we are in the safe hand of our Honorable Prime Minister. We are very fortunate that the Indian government and the Prime Minister is looking after our health very seriously and putting so many his efforts to take out our all the national citizens out of this problem. मेरा अपना एक ये मानना है कि first of all I salute to all COVID warriors जो हम लोगों के लिए अब इतना खतरा उठा के भी अब अपने हम लोगों के इस वक्त में काम आ रहे हैं. Doctors and of course policemen and safai karmi and so many persons, those who are and all the they are supporters and helpers. ऐसे वक्त में हम लोगों को उनको सैल्यूट करना चाहिए, to encourage them. और उन्हीं की वजह से we are very safe nowadays in comparison to the other countries. And second thing, I will just share one thing to you. This is the of course tough time for us, not only for us, for the entire world. तो ऐसे समय में टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उस and through technology, the latest technology which we are adopting through this webinar, we are communicating our views to other viewers also. तो ये हमें adopt करना पड़ेगा, and now the entire life is to be changed. So on this the starting note, I will start my presentation. As we know very well, this is a very grave and very difficult situation nowadays. ये कैसे हुआ? Corona, what is this corona? Corona is COVID-19 pandemic के कारण ये situation बनी है. ये चाइना से start हुआ, and China से start होके gradually it was spread all over world and in the different countries. और उससे अमेरिका and European countries और जितने भी Asian countries थे सब affect हुए. India was also affected by this COVID-19. But the time was when it started, that was December 19. And after that, in January, the end of January, it was reported in India first time in Kerala. So उसके बाद से ये धीरे-धीरे इंडिया में उसने अपने पैर पसारे. But Indian government को जब इस चीज का आभास हुआ तो then they started taking precautions and so many steps. उन्होंने बाहर से आने वाले जितने भी लोग थे उनका स्क्रीनिंग टेस्ट कराना शुरू करा, थर्मल स्क्रीनिंग at airport, and so due to that precaution and due to that step,
लोगों में थोड़ी सी एक जागरूकता पैदा हुई और उसकी वजह से हम लोगों के पास ये थोड़ा देर से आया। बट इन द मिड ऑफ मार्च ये बहुत तेजी से जब कुछ स्टेट में हमारे आने लगा, देन आवर प्राइम मिनिस्टर ही टुक a very right decision at the time. उन्होंने लॉकडाउन के लिए से पहले उन्होंने एक जनता कर्फ्यू का आह्वान किया और उस जनता कर्फ्यू के माध्यम से उन्होंने देखा कि उनकी जो एक कम्युनिकेशन था टू देयर सिटीजन, सभी सिटीजन्स ने उसको एक्सेप्ट किया और उसको माना। तो जनता कर्फ्यू वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 22 मार्च। इसके अंदर उन्होंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी, अपने घरों में रहकर एक दिन आप इसको ऑब्जर्व करिए, क्या आप महसूस करते हैं। और प्राइम मिनिस्टर देन ऑब्जर्व कि भाई ये चीज हमारे जो जनता है देन ये दे आर एक्सेप्टिंग इट। So on 24th March again Prime Minister came and then he declared complete lockdown for 21 days in entire India. And उस समय स्थिति ऐसी थी कि लोगों को एक भ्रम, एक घबराहट और एक भय की स्थिति पैदा हो गई और उन्हें लगा कि ये क्या हुआ है, अचानक ऐसा क्या हुआ। But people realized this is very dangerous virus which affects very fast. It is spreaded very fast also. So in that case जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो भी निर्देश दिए गए, जितने भी हमारे कंट्री के लोगों को जो भी चीजें दी गई, दिशा निर्देश दिए गए, तो वी फॉलोड इट। और एक अचानक बंदी से सारी जो गतिविधियां थी वो स्टैंड स्टिल हो गई। सो दिस वाज द टाइम व्हेन एवरीबॉडी वाज स्केयर्ड कि अब हमारा आगे आने वाले समय में क्या होगा। बट इट वाज वेरी इनिशियल पोजीशन। सो इन दैट केस वी वर वेरी लकी। जो इसका वायरस का जो फैलाव था, द स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, इट वाज वेरी स्लो दैट टाइम because all are observing this lockdown. So during this lockdown, अब तक की जो पोजीशन है मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि लगभग 34,000 के करीब लोग जो हैं इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए और उसमें लगभग 10,000 के करीब 8-9 हजार के करीब जो है उसमें ठीक भी हुए हैं और करीब 1100 लोग जो है उसमें उनका देहांत हुआ, उसमें मरे। तो इन कंपैरिजन टू द अदर कंट्री वी आर वेरी इन कंफर्टेबल पोजीशन। उसका कारण सिर्फ ये रहा कि लॉकडाउन लंबे समय के लिए 21 दिन के लिए लगाया गया और स्ट्रिक्टली लगाने की कोशिश की गई। अब हम इससे द एंटायर एक्टिविटी that is in of course in industry also and other type of activities और जो business activities थी या social activities थी, anything, सभी चीजें जो हैं लगभग stand still हो गई। And of course as we know because coming to our point main MSME क्या है और MSME is a part of industry, the segment which is smaller one. Micro, small and medium enterprises, as you know, it's backbone of the economy of the country. हिंदुस्तान के अंदर लगभग 6.34 करोड़ MSME established हैं and 6.34 करोड़ MSMEs के साथ लगभग 11 करोड़ workers या you can say employee वो उनके साथ जुड़े हुए हैं और 6.34 करोड़ entrepreneurs हो गए और 11 करोड़ हमारे एम्प्लॉय हो गए। सो द टोटल 17.34 करोड़ families are surviving directly on the sector. So this is very big sector in the numbers. And now if you take family size of 4 persons, 4 members, then half of the population of our country, it is surviving on this MSME sector. So how big is this? The only thing is
the size is smaller one. And second thing I tell you, I just want to share with you the contribution of MSME in total production is about 45% and 40% direct export. So how we are contributing to the economy of our country. And you see the amount of taxes in the form of revenue we are giving to the government, that gives very important and vital role in the economy of our country. So beside it, about because we are talking about MSME, so micro, small and medium enterprises. Micro and small industries are of very small size, because you see, if we classify it, then 25 लाख रुपए तक अगर जो प्लांट एंड मशीनरी में हम इन्वेस्ट करते हैं, which is the current definition of MSME. So in this case, 25 lakhs is for micro industries and 25 lakhs to 5 crores for small industries. And this is the percentage in MSME, it is 99.52%. Means कि सबसे बड़ा सेक्टर MSME के अंदर माइक्रो एंड स्मॉल का है. तो इस चीज को अगर जो मद्देनजर हम रखें तो and rest of this the portion is medium scale industries. In fact, medium scale industries 5 करोड़ से 10 करोड़ तक की सीमा के अंदर आता है जहां पर प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्टमेंट होता है. But recently government want to revise it and they want to declare the new definition of MSMEs. उससे कितना फर्क पड़ेगा हमारे उसमें, ये हमें देखने की बात है. This is for manufacturing sector. And if you come to service sectors and service enterprises, then the size is a little more less. Means the investment in plant and machinery is 10 lakhs for micro, 2 crores up to 2 crores. This is small, and about 2 crores up to 5 crores. It is this medium enterprises. तो ये हमारा यहाँ पर ये बताने का पर्पस ये था कि हमारा जो साइज है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का, इट्स वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द कॉर्पोरेट्स, दोज हु आर इंडस्ट्रियलिस्ट. In fact, we are entrepreneurs, we are enterprises. There's a difference in industrialist and entrepreneurs. तो इस चीज को मैंने इसलिए आपके सामने रखा कि this is the situation of when MSME, where it stands और क्या हमारा अपना पूरा एक दायरा है. So now we come to the current situation of MSME in disaster situation due to COVID-19. आपको मैं बताऊं कि इससे पहले लगभग 1 साल से लगातार हम लोग मंदी की तरफ थे, and it was global slowdown, global recession, and India was also affected by this. And since last 1.5 years, we were trying to get some benefits, some special packages and some schemes from the government, because इस समय MSME को चलाने में बहुत दिक्कतें आ रही. There was a lot of challenges, and challenges इस तरह के भी थे कि जिससे इंडस्ट्री लगभग कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ सेक्टर्स लगभग बंदी के कगार पर पहुंच गए. And because of the government policy also, so we were advocating the policies also to revive those industries. लेकिन इसके आने के बाद एक और नई तरह की समस्या, एक नए तरह का चैलेंज शुरू हो गया. In fact, the production activities in MSME are suspended since last 1 week of March. 1 महीने से तो बिल्कुल पूरी तरह से बंद थी. मार्च फर्स्ट वीक से इसलिए बंद थी कि शुरू का जो समय होता है मार्च का, उसके अंदर कुछ त्योहार आ गए और उसकी वजह से लगभग ना के बराबर एक्टिविटीज इंडस्ट्रीज में थी. और अब 2 महीने से बिल्कुल पूरी तरह से सारी एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज पूरी तरह से बंद है. एंड देयर इज नो वर्क विद द इंडस्ट्री, विद दिस MSMEs. सो ये सिचुएशन आने से हमारी जो लिक्विडिटी थी वो बहुत एकदम, इट इज ड्राइड आउट. इन
फैक्ट देयर इज नो वर्क, हम कोई सामान बेच नहीं सकते, और अगर जो बेच नहीं सकते तो हमें मिलेगा क्या, हमें कोई पेमेंट तो देगा नहीं. एंड लिक्विडिटी क्राइसिस ऑलवेज विद एमएसएमईज. ये मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि एमएसएमई की सबसे बड़ा चैलेंज ही लिक्विडिटी है. उसके पास वर्किंग कैपिटल बहुत कम होती है, उसके पास बहुत कम रिजर्व होते हैं फंड्स के, एंड मोस्टली इफ दे आर स्मॉल वन, एज आई टोल्ड यू 90%, 99% एमएसएमईज आर माइक्रो एंड स्मॉल, तो उनको बैंकों से भी जो है सहूलियत उतनी नहीं मिल पाती. 80% they are not getting proper assistance from the financial institutions, and that is why वो इधर उधर से करके अपने सोर्सेज से प्राइवेटली कुछ पैसा लेके, अपने घर का पैसा लगा के, तो वो अपनी इंडस्ट्री को चलाते हैं. ऐसे में सारी चीजें बंद हैं, काम बंद है तो पैसा भी बंद है. तो लिक्विडिटी क्रंच अब एमएसएमई के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आ गया है. जब मेरे पास पैसा नहीं होगा तो आई कैन नॉट इवन खर्चा करने में मुझे जो मेरे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उसके लिए भी मुझे दिक्कत आई. MSME were expecting stimulus package from government of India, but nothing concrete has come out as yet. As I have told you, हम लोगों ने शुरू से गवर्नमेंट के साथ संपर्क भी किया, उनको लगातार हम अपनी बातें भी बताते रहे. जब हमें ये लगा कि मार्च खत्म होने के बाद, बिकॉज लॉकडाउन इट वाज एक्सटेंडेड टू May 3rd, तो देन किसी तरह से there was a circular and order from government side, जबकि प्रधानमंत्री जी का कहना था कि उनका ध्यान हमें रखना है मजदूरों का, अपने कर्मचारियों का, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा ऑर्डर आ गया which was it was very tough to comply with that order, because आदमी के पास अगर जो पैसा ना हो तो वो कहाँ से लाएगा. और उसकी वजह से जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के जितने एंटरप्रेन्योर्स थे, दे वर अंडर स्ट्रेस्ड. मार्च को किसी तरह से उन्होंने देने की कोशिश करी, मार्च सैलरी को, बट नाउ द सिचुएशन हैज कम व्हेन these MSME enterprises are not able to pay the full salary to their workers. I tell you one thing, इसमें हमने IAA ने एक स्टडी करा, और स्टडी करने से ये हमें प्राप्त हुआ कि 90% ऑफ आवर MSMEs, देयर वर सेवरल अदर क्वेश्चंस आल्सो, लेकिन सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था, सबसे बड़ा चैलेंज था, वो था लिक्विडिटी का और पैसा ना होने का. और जिस लॉकडाउन की वजह से जो पैसा हम लोगों को सैलरी के रूप में अप्रैल के लिए देना था, 90% हैव सेड वी डोंट हैव मनी टू पे दिस अमाउंट. तो इस तरह की सिचुएशन जो हमारी क्रिएट हुई है इस डिजास्टर्स सिचुएशन में, so that is to be looked after by of course government, and we are trying to approach government for this type of problems. अब इसमें एक चीज और भी है कि जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए कुछ हमारे जो इंडस्ट्री चल रही थी, उन लोगों को भी बहुत परेशानी आई, क्योंकि उन्होंने संचालन तो शुरू कर दिया, but they faced lot of problems, like workers were not available, and because of this order, government order, you have to pay complete salary to your workers and to your employee. उसकी वजह से वर्कर्स में भी एक तरह का डिफरेंट एक फीलिंग आई, if the government is protecting us and they want to give the order for paying the total amount, why should we go to the industry to work? तो एसेंशियल कमोडिटीज के लिए जहां हमें ऑर्डर्स मिल गए थे, उसके बाद भी उसमें लोग बाग आने में कतराने लगे, एंड दिस वाज अगेन द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर अस. और इस कंडीशन में जब वर्कर्स ना आए और हमने अपनी फैक्ट्री शुरू कर दी है, दो it is our social work also, and government needs everything which is essential, like food items, all medicines and other things which are really needed today. जैसे कि अभी हमारे कुछ लोगों ने, of course we have started just now, कि जो स्पोर्ट्स के लोग थे, उन्होंने PPE किट बनानी शुरू करी, because it was essential item and it was needed by government, I mean this doctors and other persons. तो ऐसी चीजों को हम लोगों ने
सामाजिक सरोकार को मानते हुए हम लोगों ने वो काम शुरू करा, बट वी आर रियली फेसिंग प्रॉब्लम्स, वर्कर्स की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, संचालन में देयर आर सेवरल एसओपीज व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हमारे फायदे के लिए हैं, बट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज एज श्रुति राइटली सेड कि इनिशियली जो एसएमईज के सामने जो चैलेंजेस हैं एसओपी को फॉलो करने के लिए, वो उनको हमारे इंडस्ट्री वालों को करने में बहुत तकलीफ आई। एंड अगेन वी हैव टू इन्वेस्ट so many things to maintain orders from the government for safety purpose. Of course ये हमारे लिए है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। इंडियन इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द, मैं आईएए के बारे में थोड़ा बताना इसलिए चाहूंगा कि व्हाट वी आर डूइंग इन फैक्ट। IAEA is apex body of MSME, and we are working for the development of micro, small and medium enterprises. Of course, उनकी बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी उनके सुझाव on how to develop those persons, how to safeguard their interest. इन सब चीज के लिए we go to government directly and so many other things. जो पॉलिसीज में जो उन लोगों को हम अपने सुझाव देते हैं, एंड वी आर अबाउट 8,000 members. Those who are units, of course, and direct members, all are manufacturing, and now, of course, service units also. तो इस क्राइसिस के समय में हम उनके लिए बहुत कुछ काम करने की अपेक्षा रखते हैं, और and IAEA is doing conducting all studies, surveying from our members, and to be very true, the ground reality comes from our members, क्योंकि हमारे सदस्य जो हैं वो डायरेक्ट ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, and they all are running their own ventures or own factories. As I told you, small scale जो हमारा जो साइज है इतना छोटा है कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं वो डायरेक्ट अपने ऑफिसेस में, अपनी फैक्ट्रीज में जाकर काम करते हैं, तो दे नो ऑल द प्रॉब्लम्स एंड दे सजेस्ट डायरेक्टली टू अस। तो हमारा एक तरीका है कि हम ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, मीटिंग्स करके, अपने सभी एरियाज में जो हमारे चैप्टर चेयरमैन होते हैं उनके माध्यम से हमें वहाँ से खबर मिलती रहती है, एंड वॉट एवर दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग रनिंग द इंडस्ट्रीज इन एसेंशियल आइटम्स, या कोई और तरह की कोई भी जिस तरह की दिक्कतें हैं, तो सारी वो हम लोगों तक पहुंचाते हैं। देन वी डिस्कस विद द अथॉरिटीज, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी करते हैं, एंड एट द चैप्टर लेवल लोकल अथॉरिटीज के साथ हमारे जो चैप्टर चेयरमैन हैं वो उन लोगों के साथ संवाद बना के दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स at this stage. Of course, जैसा मैंने बताया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हैं, तो इन प्रॉब्लम्स को लेके हम लोग लगातार संवाद किए हुए हैं, और स्टडी कमेटी हमारी एक बनी हुई है, जो स्टडी एंड रिसर्च कमेटी, अब वो इस ओर भी काम कर रही है कि हमें इस लॉकडाउन पोजीशन में जो करंट सिचुएशन है उसको भी आकलन कर रही है, क्या समस्याएं हैं और उससे क्या इफेक्ट आएगा हमारे एंटरप्रेन्योर्स पे, और आने वाले समय में हमें किस ओर जाना है। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, हाउ द एंटरप्रेन्योर्स विल फील कि क्या हमें आगे के समय में क्या सुविधाएं और किस तरह से मिलनी चाहिए कि हम अपने एंटरप्राइजेस को खड़ा कर सकें। एंड वन मोर थिंग, ऑफ कोर्स, जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा बिफोर कमिंग टू एक्शन बाय द गवर्नमेंट, कि ये इन चीज़ों से हम लोगों को एक नई दिशा तो मिली है, और कुछ जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि वी आर इन द वेरी सेफ एंड जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उन जो मेडिकल साइड से भी एक्सपर्ट हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सजेशंस देते हैं, एडवाइस करते हैं, ऑन दैट बेसिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग लॉट ऑफ स्टेप्स। तो उसके माध्यम से हमें जैसी जानकारी मिली कि दिस इज द पैंडेमिक, दिस इज द दिस वायरस
जो अभी कुछ समय और के लिए रहेगा हमारे बीच में. इट इज नॉट वेरी इजी टू स्केप ऑफ दिस. तो ऐसी स्थिति में हम लोगों को अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए कि हमें इन परिस्थितियों में रहकर रहना जीना भी है, अपने को हेल्थ के हिसाब से भी अपने को सेव रखना है, सेव करके चलना है. एंड थर्ड सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है इस समय, उसको उसके लिए भी किस तरह से एक समन्वय बनाकर गवर्नमेंट के साथ और अपनी कुछ परिस्थितियों को चेंज करके वी कैन डेफिनेटली वी कैन change ourselves, our lifestyle, our way of doing the work. तो अपनी मानसिकता को हमें बदलना पड़ेगा. Now I tell you, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हमने जो सजेशंस दिए, तो उनको उन्होंने बहुत सीरियसली लिया. एंड फ्यू स्टेप विच वी हैव टेकन. एक तो बैंक से संबंधित, क्योंकि हमारे यहाँ जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम थी, क्रंच था, इट इज टू बी सॉर्टेड आउट. So we had requested the early time, that is in the end of March of course, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, तो हमने अपने सजेशंस भेजे और उन सजेशंस के माध्यम से हमने गवर्नमेंट को सजेस्ट किया कि ये जो 31 मार्च इज द क्लोजिंग ईयर, it should be extended for at least 2 months. गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड इट. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको तुरंत संज्ञान लिया. Of course, from other side also, they were getting the feedback. तो उनको लगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है. एंड देन जो इंटरेस्ट के ऊपर जो बर्डन था और EMI के ऊपर बर्डन था इमीडिएटली, एंड इनकम टैक्स को लेके जो बहुत सारी चीजें थी, GST को लेके हमारे जो बहुत कंप्लाइंसेस थे, उन सबको हमने उनसे बातचीत करी एंड ऑल आर डेफर्ड फॉर ए सर्टेन पीरियड. अब सेकंड थिंग, ऑफ कोर्स RBI को, क्योंकि बैंक को भी इंस्ट्रक्शन देनी थी, एंड वी वर आस्किंग देम टू वेव ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड. सो व्हाट हैपेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI के मेरे ख्याल समन्वय से एक कुछ गाइडलाइंस दी गई. दो सम ऑफ देम दे वर नॉट इट वर नॉट क्लियर गाइडलाइंस. हमें इनफैक्ट गाइडलाइंस नहीं चाहिए थी, हमें चाहिए था डायरेक्टिव्स. मींस बैंक दे सेड कि इफ दिस इज कंपल्सरी देन वी विल डू इट. सो लेटर ऑन बैंक्स आल्सो इंस्ट्रक्टेड देम टू डू सो. कुछ चीजें जैसे बताया गया कि एडिशनल वर्किंग कैपिटल के लिए बैंक ने कहा, तो उस एडिशनल कैपिटल वर्किंग कैपिटल में 20% के लिए बोला गया कि द करंट वर्किंग कैपिटल की 20% तक लोगों को दिया जाना चाहिए इफ दे रिक्वायर इट. बट दे सेड कि बैंक आर वेरी दे आर टेकिंग ऑल स्टेप्स वेरी सेफली. They are not that much aggressive as RBI has given them the instructions and government have given the instructions. लेकिन उन्होंने फिर भी काम शुरू किया. उससे हम लोगों को काफी कुछ एक सहूलियत हुई है. एंड द अदर थिंग, MSME मिनिस्टर से हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी. गडकरी साहब ने बहुत उसको संजीदा से लिया एंड ही हैज आल्सो थिंकिंग, जैसा कि अभी पता लगा है कि 1 लाख करोड़ का एक रिलीफ पैकेज MSME के लिए दे आर गोइंग टू डिक्लेयर इट. बट वी आर वेटिंग फॉर दिस. ऑफ कोर्स वी आर वेरी ईगरली वेटिंग कि क्या उसमें मिलने वाला है, हम लोगों को किस प्रकार से मिलेगा. और मेरा अपना पर्सनल एक ओपिनियन है कि जो आज की समस्या है, इसको सुलझाने के लिए गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड हैंड होल्डिंग इज रिक्वायर्ड. अदरवाइज MSME हैज रीच्ड टू सच पोजीशन कि most of I don't say the percentage, of course I can't declare, but बहुत सारी MSMEs इस वजह से बंद हो जाएंगी कि अगर जो गवर्नमेंट उनको कोई रिलीफ पैकेज नहीं देता है. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. दे शुड डिक्लेयर सम रिलीफ पैकेज इन रिलीफ इन अदर मैनर ऑल्सो. ये बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास. इट इज नाउ द चैलेंजेस, एज यू नो वेरी वेल, this challenge is not only for industry, for MSME, not for only for entrepreneurs. This is for employees also, for workers also, and government also. Or as a whole, general public को तो ये challenge, this is very tough time. तो हमें इस सब चीज को समझते हुए
कि हम सबके लिए ये चैलेंज है, सबके लिए टफ टाइम है, then we have to control ourselves, have patience, and to run our industries, how we can run the industries, ये सब चीजें हमें and जो इस करंट सिचुएशन में जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनको देखते हुए किस तरह से हम इंडस्ट्री को आगे चलाएंगे, इस चीज पे भी हमें बहुत विचार करने की आवश्यकता है. The first priority of course for all of us, control the spread of COVID-19. ये बहुत जरूरी है. असल में हम लोग sometimes what we feel कि ये गवर्नमेंट कर रही है, हम लोगों के ऊपर restrictions लगा रही है, बट गवर्नमेंट क्यों लगा रही है ये हम नहीं सोच पाते. So हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारी पहली लड़ाई जो है कोविड के साथ, and if we will fight against it, definitely the other part of it, like economy and other things, it can be controlled by our आपस में बैठ के सरकार के और हम लोगों के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में, हमारे जो और स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में बैठ के हम लोग इन चीजों पे मंथन करके इसको सुलझा सकते हैं. लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड दैट इज व्हाई से जो भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं वी शुड फॉलो, एंड वी शुड नॉट ब्रेक एनी रूलिंग्स जो उनकी तरफ से आते हैं, और SOPs for industries and for other persons also. Keep distancing as they say. जैसे गवर्नमेंट कहती है उसी तरह से हमें डिस्टेंस क्रिएट करके रखना चाहिए. 2 मीटर का कहती है तो 2 मीटर का रखें, एंड यूज ऑल दोस थिंग्स, जैसे कि हमें आपस में हाथ नहीं मिलाना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजेशन करना चाहिए. सो आई फील as citizen of India and as a general public, we must follow all those things. एक चीज ऑफ कोर्स है, बहुत सारी चीजें हम लोग समझ ही रहे हैं जो चैलेंज में है, कि जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिटोरिएट हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है, उसको हमें समझना पड़ेगा और उसके ऊपर नेचुरली मंथन करना पड़ेगा. बट दिस इज बिग चैलेंज बिफोर ऑल ऑफ पीपल. एंड एक और चीज जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को और हम सब लोगों को मिलके इस चैलेंज को समझने के लिए कैसे रिवाइव कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं इकोनॉमी को, इसके ऊपर भी काफी मंथन करने की आवश्यकता है. एंड टू बी वेरी ट्रू, अगर जो हम देखें कि अगर जो हम इन चीजों को इग्नोर करेंगे तो ये हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस सिचुएशन में अपने आप को ढालें, अपनी लाइफस्टाइल को भी बदलें. तो इन चीजों को लेके जो ये चैलेंज हमारे सामने खड़े हुए हैं इनको हम दूर कर सकते हैं. फॉर एटलीस्ट 6 months फ्रॉम नाउ, ऑफ कोर्स ये बताना चाह रहा था कि पोस्ट लॉकडाउन जो हमें देखना है इस पे क्या सिचुएशन बनने जा रही है. Pankaj, sorry to intervene. Can we conclude like quickly? We are running out of time and we have next. Okay. Yeah. Okay. Right. तो देखिए आगे आने वाले 6 महीने में हमें इन सब चीजों को अपने हिसाब से देखना पड़ेगा. इवन आफ्टर वैक्सीन कोविड-19 की आ जाती है, उसके बाद भी उस पर काफी समय लगेगा. तो मेरा मानना यह है कि लगभग 1 साल का 6 से 12 महीने का इफेक्ट हमारे ऊपर आएगा नॉर्मलाइज करने के लिए अपनी लाइफ को. और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चीज हमें अपने दिनचर्या में ढालनी पड़ेगी. सो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस व्हेन वी आर गोइंग आउट फॉर रनिंग द इंडस्ट्रीज. और इस चीज को हमें प्लान भी करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी और इंडस्ट्री को. सो शॉर्ट टर्म एक्शन है, जैसा कि अभी ये 3 मई का डिक्लेरेशन हुआ है, तो उसको अगर जो फुल स्विंग में हमें चलाना है तो डेफिनेटली ग्रीन जोन और जो हमारा ये ऑरेंज जोन है इसमें रेस्ट्रिक्शंस के साथ अगर जो हम चलाएंगे तो हमें डेफिनेटली एक प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी. एंड इन सो मेनी अदर केसेस स्मॉल स्केल के लिए हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज में जहां हमें परमिशन मिलती है वहां पे रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, डॉक्टर्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी हमारा जो ये काम है वो सुचारू रूप से चल पाएगा.
और गवर्नमेंट की तरफ से एक हमें और चीज की आवश्यकता है कि इस तरह के ऑर्डर्स ना निकालें जो एमएसएमई उसको पूरा ना कर सके। व्यवहारिक रूप से कोई भी ऑर्डर्स निकलते हैं तो निश्चित रूप से हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सॉर्ट इट आउट एंड लाइक सैलरी को विदाउट वर्क देना, दिस इज इन माय ओपिनियन ये एक अच्छा निर्णय नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। इट इज बेटर कि गवर्नमेंट उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करे। वी हैव गिवन सो मेनी सजेशन टू गवर्नमेंट। तो इस तरह की चीजें हमने उनको दी है। और जैसे बिजली के चार्जेस हैं जो जब नहीं है, जो बंद पड़ी हुई इंडस्ट्रीज है उनके लिए इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फिक्स्ड चार्जेस और बिजली के जो चार्जेस एक्चुअल कंज्यूम होने पे दिए जाए। तो ये ऐसी समस्या है जो कि गवर्नमेंट कैन टैकल दिस थिंग एंड शॉर्ट एक्शन बाय द गवर्नमेंट, जीएसटी, टीडीएस एंड इनकम टैक्स, ये सारी चीजों को हमें जो है रिफंड इसके जो रुके हुए हैं वो मिलने चाहिए। हमारे बहुत सारे पेमेंट गवर्नमेंट के पास रुके हुए हैं, वो भी हमें गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी दे। ऑल PSUs टू बी इंस्ट्रक्टेड टू पे द पेंडिंग पेमेंट्स टू अवर MSMEs। और एक जो रिड्यूस इंटरेस्ट पे अगर जो MSME को we suggest 5% should be the interest लोन के ऊपर, तो उससे MSME को काफी बढ़ावा मिल सकता है एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इंटरेस्ट ऑफ EMI एंड। तो इन सब चीजों को PF पे, ESI, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, इनके ऊपर अगर जो हमें लंबे समय के लिए सितंबर तक के लिए जो रिलीफ मिलता है तो उससे हमें चलाने में बहुत आसानी होगी। एंड नाउ इसी शॉर्ट टर्म एक्शन बाय द बिजनेस इट इज ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज। हमारे जो वर्कर्स हैं उनका हमें ये हमारी तरफ से है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा और जितने भी SOPs हैं वो भी हमें फॉलो करने चाहिए। एंड थर्ड थिंग, जो भी हमारी वेस्टफुल जो प्रोडक्ट्स हैं या जो वेस्टेज है उसको कम करनी पड़ेगी, तभी हम अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। ये इंडस्ट्री के लिए हमारा कहना है। और लॉन्ग टर्म में ऑफ कोर्स GST को थोड़ा कम करने की बात थी एंड वी प्रपोज इट शुड बी 50% ऑफ द करंट रेट। एंड सेकेंड थिंग, जो लीगल एक्शन जो लोगों के बहुत सारे मुकदमे और बहुत सारी चीजें लिटिगेशन में चल रही हैं, दैट शुड बी डेफर्ड फॉर एटलीस्ट फॉर 1 ईयर। जो सरफेसी एक्ट के ऊपर NPA करने की जो बात है, वन टाइम सेटलमेंट कुड बी डन। इस तरह की चीज से एक MSME को कुछ रिलीफ मिलेगा एंड दे कैन थिंक टू सर्वाइव। एंड जो भी इम्पोर्ट आइटम है हमारे, उन इम्पोर्ट आइटम्स को हमें रोकना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि वो चीज हमें हिंदुस्तान में बनने को मिल जाए तो इट विल बी बेटर, उससे MSME को बूस्ट मिलेगा। दिस इज द लॉन्ग टर्म विच आई हैव टोल्ड यू। एंड फ्रॉम आवर साइड ऑफ कोर्स इंडस्ट्री की तरफ से हमें अपने एक्सपोर्टर्स के लिए स्पेशली, क्योंकि जो ग्लोबल सिनेरियो इट इज डिफरेंट, तो ऐसी कंडीशन में अपने बायर्स के बारे में सोचना पड़ेगा, एरिया के बारे में सोचना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर सेवरल कंट्रीज जो बहुत खराब पोजीशन में आ जाएंगे एंड स्पेशली एक्सपोर्टर्स आर फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस कि उनके बायर्स, उनके जो क्लाइंट है वो शायद उनसे सामान ना लें। तो ऐसे कंडीशन में हमें चेंज करके और उनको वॉच करना पड़ेगा एंड इंश्योर एक्सपोर्टर्स एक चीज की जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है हमारी एक ECGC की, उसके माध्यम से वो सारे अपने बिजनेसेस करें, क्योंकि आज जो Pankaj ji, I would request you to please quickly conclude. Actually, time is running out, sir. Sorry. Okay. Just 1 minute. Just after 1 minute, I'll finish it up. तो ये बहुत सारी और चीजें हैं जो हमें लॉन्ग रन में सोचनी पड़ेगी। हमें उसके बारे में भी अपनी प्लान करनी पड़ेगी। जैसा आई हैव टोल्ड यू, IAEA इज स्टडीइंग ऑन दिस सब्जेक्ट कि आगे आने वाले समय में ग्लोबली एंड डोमेस्टिक मार्केट में हमें किस तरह से अपने आप को स्टैंड करना है। तो these things are so important for us. So with these few words, I tell you this is the situation where we have to stand strongly, patiently, और सारी चीजों पे हमें ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा। बहुत हमारे आज का समय जो है it is very important for us, for industry and for country also. इन शब्दों के साथ मैं I extend my thanks to all of you. Thank you very much.